felt compelled to come forward and express their displeasure at the immense politicization that the Bharatiya Janata Party is doing over the valor of our armed forces. It is extremely unfortunate that here is a political party which is at the helm of the affairs, finds it absolutely all right to politicize and pull in a political army and armed forces for their own political narrative and their own political gains. Over 156 veterans of the Indian Armed Forces have written a letter to President Ramnath Kovind ji yesterday. If you remember, President Ramnath Kovind ji, who was kept away when the Army Memorial was being inaugurated, is also the Supreme Commander of the Armed Forces. Out of these 156 Army veterans, we have 8 former Chiefs of Army, Navy and the Air Force. And the things that they have said has to be spoken out, and that quote has to come forward and has to be repeatedly brought to the attention of a political party which is absolutely brazen about political brownie point scoring over our valor of our armed forces. They have said necessary steps to urgently direct all political parties that they must forthwith desist from using the military uniforms or symbols and any action by military formations or personnel for political purposes to further their political agenda. If this isn't enough of an embarrassment for this government, I don't know what is. How can we forget how Wing Commander Abhinandan's posters came up in all BJP rallies and their road rallies? How can we forget that the Prime Minister Narendra Modi and Shri Amit Shah have now chosen to make this entire attack as their political narrative to win this election? If you remember, and now I believe Election Commission has also reprimanded the Prime Minister, very meekly though, on how he spoke about our army veterans on the attack, the Balakot airstrike on April 9th in his election rally in Latur. And this is not the only thing. Even Aditya Nath on 31st March during his campaign rally went a step ahead and called it Modi ji ki Sena. If this isn't enough of an insult of our armed forces by the Bharatiya Janata Party, then what is? We have also seen how Mukhtar Abbas Naqvi has also done this. And do you remember the smiling, laughing, waving pictures and video clips of Sakshi Maharaj in Unnao? He almost made it his political rally while carrying the martyred body of our brave CRPF soldier. Lots of people from within the armed forces, family members of those who were slain in the Pulwama terror strike. And I would want to bring to notice Apurva Rawat, who is the daughter of Kaushal Kumar Rawat, who was martyred in the Pulwama attack, also sent in a request saying that please do not politicize army. और दुख इस बात का होता है कि ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे वीर सैनिकों को अपनी राजनीति में घसीट रही है। कारगिल युद्ध के बाद भी 3 आर्मी चीफ्स के पॉलिटिकल पोस्टर्स लगाने की जो जुर्रत हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद ने की थी। और मेरे पास बाकायदा 2004 में जनरल वीपी मलिक ने अपनी किताब में लिखा है, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री में कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाकर कंप्लेन लिखी कि आप अपने पूरे एनडीए के कैंपेन में हमारे सैनिकों को क्यों खींच कर ला रहे हैं और उस पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। एंड मैं फिर से उन्हीं को कोट करूंगी, उन्हीं की किताब से आता है, The armed forces were anguished because they were getting sucked into electoral politics as a result of the blatant effort to politicize the war for immediate electoral advantage.
At one stage, in desperation, I had to send across a strong message through the media. Leave us alone, we are apolitical. फिर भी जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, और हम देख रहे हैं किस तरीके से आज आर्मी के वेटरन्स भी मजबूर हो गए हैं इस पे अपनी टिप्पणी देने के लिए और लेटर के माध्यम से राष्ट्रपति को कहने के लिए प्लीज़ आप इसमें रोकथाम लगाएं और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। उन्होंने एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी दी है। तो हम अपनी सहानुभूति जताते हुए हम अपने सारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं और कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस तरीके से आप राजनीतिकरण कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में सेना का ही मनोबल नहीं कम करता है, पर सेना को भी अगर राजनीति में घसीटने का काम करता है तो वो संविधान के खिलाफ है, देश की प्रजातंत्र के खिलाफ है। इसी उम्मीद से हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द अपनी हरकतों से बाज आए और जिस तरीके से सेना का और उनकी वीरता का खुद राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं उस पर पाबंदी जल्द से जल्द लगाए। दूसरा मुद्दा जो मैं आपके सामने आज ला रही हूँ वो एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने हम सबको, अरे ये बार बार मुझसे गाने की बात ना करें, बड़ी मुश्किल से गाया ये पूरा गाना हाँ फिर से सुना देंगे। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज़ कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। शुरुआत में उनकी 2004 की डिग्री से करना चाहती हूँ, एफिडेविट से करना चाहती हूँ जो उन्होंने फाइल की थी, जहाँ पे वो बीए थी। उन्होंने 96 में बीए किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था। ये बाकायदा उनका इलेक्शन का एफिडेविट है। फिर वो ग्रेजुएट हुई 2011 में, बीए से उन्होंने कहा बीए से उनका मन नहीं लग रहा है तो क्यों ना हम बीकॉम की डिग्री बना लें। तो उन्होंने अपना एफिडेविट राज्यसभा में लिखा है, जहाँ पे कहती हैं स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1, पर साल बदल जाता है। वो डिसाइड करती हैं कि अब हमें 94 में करना है। फिर आता है 2014 और 2014 में वो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटकर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो चलता है, वहाँ पे बीकॉम पार्ट 1 फिर से कर रही हैं 94 में। फिर उन पे सवाल पूछा जाता है कि आपके एफिडेविट में अलग अलग सवालिया निशान क्यों खड़े हो रहे हैं। तो वो कहती हैं आप मेरी डिग्रियों के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे पास तो येल की डिग्री भी है जो मुझे मिल चुकी है, पर मैं वो अपने एफिडेविट में नहीं लिख रही। तो इस टाइम हमें पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी येल की डिग्री को भी मेंशन करेंगी। येल डिग्री के साथ साथ जो भी उनकी उपलब्धियां हैं पिछले 5 साल में, हो सकता है कुछ पीएचडी कर लिया हो उन्होंने, पर पीएचडी झूठ बोलने में क्या वो साबित हो चुका है। और वो पीएचडी अब बताता है, क्योंकि आज देश के सामने, और मैं आपको बता दूं 2017 में जब राज्यसभा का वो नॉमिनेशन भर रही थी, वो गुजरात के इलेक्शन कमीशन ने डराया था, धमकाया था, क्या किया था। वो इलेक्शन कमीशन ने अब कुछ दिन पहले ही, जैसे ही हमने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने उनका एफिडेविट अपलोड किया है, वरना फाइनली अमेठी के रास्ते से और उसके हवाले से खबर मिली है कि उन्होंने कबूल किया है
कि पिछले 4 एफिडेविट में उन्होंने देश को झूठ बोला है, देश को बरगलाया है, और वो बीकॉम पार्ट 1 में भी उन्होंने डिग्री कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। ये देश के सामने एक नई हकीकत और सच्चाई आई है कि कितना झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स रोज देश में करते हैं। और हमें दिक्कत इस बात की नहीं है उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। हमारे देश ने दिखाया है कि 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, अगर उनके पास विजन हो और मिशन हो तो देश की तकदीर, दिशा दशा बदल सकते हैं। पर गुस्सा इस बात से आता है कि ये मंत्री साहिबा पिछले इतने सालों से गलत एफिडेविट देश के सामने लाए जा रही हैं ये सोचकर कि कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछेगा। और साथ ही साथ मैं यही पूछना चाहती हूं कि अपनी गलत रिकॉर्ड एक लीगल एफिडेविट में डालना, क्या ये ऑफेंस नहीं है सेक्शन 125A के अंतर्गत? और सेक्शन 33 के साथ अगर इसको पढ़ें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, तो ये एक कानूनी प्रावधान है जहां पे उनको सजा मिल सकती है। तो इस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर हाई कोर्ट पे भी पाबंदी लगा देना कि आप लोग उनकी एजुकेशनल डिग्रीज को देश के सामने नहीं रख सकते हैं, मैं मानती हूं ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी है। तो क्यों ना हम यूनियन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी से कहें कि मॉरल अथॉरिटी के अंतर्गत अगर कोई मॉरल अथॉरिटी उनमें रह गई है वो स्टेप डाउन करें इमीडिएटली, और उनका डिस्क्वालिफिकेशन क्यों ना माना जाए। जिस तरीके से वो देश को एफिडेविट के माध्यम से बरगलाने का काम अपनी एजुकेशनल डिग्री को लेकर कर रही हैं। तो इन 2 मुद्दों पे अगर आपके कोई सवाल हो उनको मैं ज़रूर लूँगी। पहले हम वो ये जो आर्मी वेटरन्स का है उस पर लेंगे, फिर स्मृति ईरानी जी को लेकर अगर कोई सवाल हो आपके बीच में। नहीं, वो गाना एक ही बार गाया जाता है, बार बार नहीं, वो यूनिक गाना है। हाँ, वो हम प्रेस रिलीज के माध्यम से भेज देंगे विदाउट द सिंगिंग। हाँ, कोई सवाल है? नथिंग ऑन द आर्मी वेटरन्स, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। यस, नहीं, अपील आई थिंक भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक्सपोज हुई है इस लेटर के माध्यम से, जो कभी सैनिक राजनीति में ना पढ़कर अपनी देश सेवा में लगे रहते हैं, आज वो अपने आप को मजबूर पाते हैं कि इस सरकार को ध्यान दिलाएं कि इस तरीके का राजनीतिकरण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे वीर सैनिकों को अपनी राजनीति के लिए घसीट कर लाना एक सही तौर तरीका नहीं दिखाता है सरकार चलाने का। तो वही हम मानते हैं कि एक सबसे बड़ा इस सरकार के लिए लेसन है कि जो एक अपॉलिटिकल संगठन है जो देश की सेवा में कार्यरत है, उसको आप बिल्कुल भी राजनीति से दूर रखें। तो हम तो उनके साथ सहानुभूति ही नहीं, हम उनके साथ साथ खड़े हुए हैं आज कि जब 8 पूर्व आर्मी चीफ आकर, नेवी चीफ आकर, एयरफोर्स चीफ आकर ये चिट्ठी लिखते हैं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक सीखना चाहिए। और ये पूरी राजनीतिकरण जो हो रहा है, घिनौना राजनीतिकरण जो हो रहा है, उस पर जल्द से जल्द पाबंदी लगानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे अब राष्ट्रपति की तरफ है। सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो खुद भी दुख महसूस करते होंगे जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पे पाबंदी लगाएंगे।
अगर सफिशेंट होती तो आज हमारे आर्मी चीफ्स को बाकायदा लिखकर 156 आर्मी वेटरन्स को बाकायदा एक चिट्ठी के माध्यम से इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसका राजनीतिकरण जल्द से जल्द रोका जाए। इनके एक नेता हैं जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर प्रचार कर रहे हैं, एक प्रवक्ता हैं जो कहते हैं हम आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर अब हर डिबेट्स में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हवाले से अपने लिए वोट बटोर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं और आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा निंदनीय क्या हो सकता है कि जहां कोई सवाल आपसे पूछता है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, 350 किलो RDX आया है, एक ऐसा आतंकवादी जो दिन रात भारत को कोसता था उसको जेल तक नहीं भेजा गया था, वो प्राइवेट गाड़ी लेकर हमारे कॉन्वॉय को और CRPF के कॉन्वॉय को अटैक करता है, उस पर ना बात कर जवाबदेही से बचकर जो खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और उनके नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिसकी मजबूरी के चलते इलेक्शन कमीशन ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है चिट्ठी लिखने के बावजूद भी। उसके चलते जब आर्मी वेटरन्स ये लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की ढील दी जा रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सारे नियम कानून संवैधानिक तौर तरीके प्रजातंत्र का सम्मान को दरकिनार कर कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। करती रहें, याचिका डालती रहें सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वो दस्तावेज जो सीधा सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय जो पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था, नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर रहा था, डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ था और किस तरीके से डबल द प्राइस में खरीदा जा रहा था, वो दस्तावेज अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जा रहे हैं। मीनाक्षी लेखी की याचिका जाहिर करती है किस तरीके का हड़कंप उनके खेमे में मचा हुआ है और चौकीदार चोर है का जो नारा हमने शुरुआत की थी उसकी पूर्ति होने जा रही है इन दस्तावेज के माध्यम से। उपराष्ट्रपति की जो जिम्मेदारी होती है वो एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, राजनीति से ऊपर उठकर होती है। जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी पूरे देश ने देखा था किस तरीके से वो रो रहे थे, दुखी हो रहे थे अपना राजनीतिक दल छोड़कर, पर कह रहे थे कि हाँ ये जो संवैधानिक जिम्मेदारी मिली है उसका पूरा पूरा पालन करेंगे। पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या मजबूरियाँ हैं कि एक तरफ कल्याण सिंह जो गवर्नर बनकर गए हैं, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति हैं कि उनको भी राजनीतिक बयानबाजी करने का जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है। ये गैर संवैधानिक है, इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी दिखा रहा है कि हार के डर से उनके सारे जो भी नेतागण हैं जिनको संवैधानिक पोजीशंस दी गई हैं वो भी राजनीतिक बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। खुद की जवाबदेही से बचकर किसानों का जब जवाब नहीं है, किसान आए दिन आपसे पूछ रहा है और इंसाफ की दुहाई मांग रहा है, तब भी आप उनको इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। अन्याय किया है आपने उनके साथ, अन्याय आपने महिलाओं के साथ किया, अन्याय आपने हमारे युवाओं के साथ किया, अन्याय आपने देश में भ्रष्टाचार फैलाकर किया और उससे अब आपको न्याय से तकलीफ होने लग गई। तो भारतीय जनता पार्टी, उपराष्ट्रपति हमें बता दें कि क्या आज अन्याय के आप भागीदारी बनेंगे या न्याय के साथी बनेंगे? और उन्होंने तो बुद्धिज्म भी नहीं कहा, बुद्धा जी का नाम लिया सिर्फ।
तो मैं बस यही कहूँगी कि आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण माहौल बन चुका है कि अपनी राजनीतिक सियासत के पीछे जो हमारी देश की संस्कार, देश की परंपरा बनी रही है आज से ही नहीं हज़ारों साल से, उसको ध्वस्त करने का इन्होंने काम किया है। मुझे याद है स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो का उनका भाषण था, उन्होंने कहा था मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इस देश से आ रहा हूँ जिन्होंने हर धर्म, हर प्रांत के लोगों को सहारा दिया, उनको जगह दी, पनाह दी। और गर्व है मुझे इस बात का कि हर धर्म के लोग खुशी खुशी आपस में एक साथ जीते हैं। और आज ये न्यू इंडिया मॉडल जो नरेंद्र मोदी जी का बनता आ रहा है, वो बाकायदा दिखाता है कि किस तरीके से ध्रुवीकरण कर कर, जात पात की राजनीति में पढ़कर, धर्म की राजनीति से करके ये अपना सियासी फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं। क्या ये इनका न्यू इंडिया मॉडल है जो स्वामी विवेकानंद के परय है? क्या ये इनका वो न्यू इंडिया मॉडल है जो भारत की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है? तो हम पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी, आप ये बता दें कि क्या अब अगली बार आप सर्टिफिकेट भी बांटने लगेंगे कि इन सारे धर्मों में कि कौन ज़्यादा देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है? दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और विभाजनकारी सोच की हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लोगों की आदत पड़ चुकी है अपने मन की बात करने की, वो अपने खुद के लोगों की, जन की बात तो दूर, अपने खुद के ही लोगों की बात सुनना ख़त्म कर चुके हैं। ये परंपरा ही बन गई है, नई परंपरा है, क्योंकि न्यू इंडिया की जो बात करते हैं कि किसी की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे, ये उसी के चलते एक हिस्सा है। तो ये सारे काम मैं मानती हूँ कि जो विभाजनकारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है और जिस तरीके से ध्रुवीकरण कर कर ही अपना राज संभालने का काम है, वो आने वाले समय में देश के लिए हानिकारक होगा। और हम मानते हैं कि हर देश की जनता और वोटर जागरूक हो चुका है और अपना वोट डालने से पहले वो सारी ये बातों को ध्यान रखकर ही अपना मतदान उस पार्टी के लिए डालेगा जिन्होंने देश के लिए विकास किया, प्रगति की और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, वो है कांग्रेस पार्टी। Yeah, I've just given him a bite, but that was in Hindi. I don't mind repeating it. That it only goes to show how the Bharatiya Janata Party, through its elected representatives, is scared and misusing freedom of speech and trying to suppress lies. How can we forget the Official Secrets Act that they were trying to bring in to try and thwart the voices of independent journalists? Fearless journalism was being thwarted by using the Official Secrets Act. How can we forget that in the entire Rafale case, the Prime Minister and all his people in the ministry tried to suppress the documents that were being presented in the Supreme Court? How in a sealed envelope, they only served some more lies to the Supreme Court of the country? And the documents that have been accepted by the Supreme Court are those documents which lay the blame on the Prime Minister's office straight away, where the Indian negotiation team has categorically stated how nation's interest was being undermined, how the prices of Rafale were inflated, how clauses were being bypassed which even the Ministry of Defense objected to. So these documents categorically show that only Sri Rahul Gandhi has been speaking about this corruption, and it is absolutely legitimate to say that चौकीदार ने चोरी की है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो महिलाओं के बारे में क्या क्या बातें कही हैं उसको दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से घूंघट हरियाणा की डेवलपमेंट रिपोर्ट में आता है
और महिला की शान बताई जाती है। किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं महिलाओं को अगर आज़ादी चाहिए तो बगैर कपड़े पहनकर घूमें, अगर महिलाओं को सुरक्षा चाहिए तो उनको किसी संस्कार का पालन करना होगा, ठीक ढंग के कपड़े पहनने होंगे। अब वही मुख्यमंत्री अगर बाबा राम रहीम के पास जा रहे हैं, वही राम रहीम जिन्होंने महिलाओं पे इतने सारे अत्याचार ढोए हैं, तो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता महिलाओं को लेकर क्या है। हम शुरू से कहते आए हैं महिला विरोधी सोच की प्रगति करना, यही 5 साल में काम हुआ है। बड़े बड़े कार्यक्रम बनाना, घोषणा करना कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करेंगे, पर 56% अपने खुद के प्रचार में खर्च करना। उसी तरीके से 33% रिजर्वेशन महिलाओं की बिल की बात हुई थी, उसको दरकिनार करना। तो ये जो महिला विरोधी मानसिकता है वो स्पष्ट होती जा रही है। जो एक कन्विक्टेड मैं कहूँगी क्रिमिनल हैं, उनका आप समर्थन मांगते हैं, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। Are we done? Yeah. Absolutely. We welcome this judgment coming from the Supreme Court, and we have always mentioned that transparency in political funding, transparency in governance is an absolute must and should be adhered to. This is a political party, the BJP, which came on the back of many promises. They spoke about how they will bring in more transparency in the systems, but has done nothing towards it. In fact, whether it is undermining the RTI, the CVC, the CIC, they have done everything well within their rights to suppress transparency in the governance. And we would hope that the Bharatiya Janata Party would explain how they've managed to get the kind of funding that they've received, and it would also expose the nexus between their suited, booted friends and the political party, which has, within its 5 years, not given development to this country, but has developed a 5-star headquarters for itself in Delhi. Are we done? हार का डर। चलिए, थैंक यू।